Good morning, student. We have discussed in the previous lecture the chapter number 8, the elements of group first and group second element. And first, you will start the elements of first group element is the hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. This is the first group element. And next to the second group element is the beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. And discussed in the previous lecture. And the atomic numbers of the first group elements is the hydrogen is the 1, lithium is 3, sodium 11, potassium 19, rubidium 37, cesium 55, and francium 87. This beryllium next to the lithium atomic number is 3. First, in the magic number you have first the hydrogen is the atomic number is 1, and next the atomic numbers of the lithium, and to write the magic number and the additions of the magic number and the next to the atomic numbers of the lithium. तो first is the magic number is the 2, उसके बाद 8, next है 8, उसके बाद 18 and 32. तो additions of the this 1 and 2, the atomic numbers of lithium is the 3 and 3 plus 8 is the atomic numbers of sodium is the 11. 11 plus 8 and the atomic numbers of the potassium is the 19 and 19 plus 18 is the atomic numbers of rubidium is the 37 and next the 37 plus 18 is equal to 55 and the atomic numbers of the cesium is the 55 and 55 plus 32 and the atomic numbers of the francium is the 87. And next the elements is the second group element is the beryllium and next atomic numbers lithium 3 and the beryllium is 4, sodium 11 and the magnesium is the 12, potassium 19 and the calcium is the 20. Next rubidium is the 37 and strontium is the 38. Next element is the barium 56 and radium is the 88, and this is the atomic numbers of the first and second group element. Next to the electronic configuration, the electronic configurations of the first group element, this is the first group element, and first group element general electronic configuration is N(s)(1). N is the principal quantum number and S subset and X subset की maximum capacity is the 1 electron. Next, the general electronic configuration in the second group element is the N(s)(2), and the maximum loss of the electron in the first group element is the 1 electron loss in the outermost shell, and the oxidation number in the first group element is the +1. Oxidation number in first group is the +1, and the maximum numbers of the electron present in the valence shell in the second group is the 2 electrons, and the loss of 2 electrons, the oxidation state, common oxidation state in the second group element is the +2. जैसे कि हम यहाँ बता सकते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट्स है फर्स्ट ग्रुप का, उसका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम के लिए हमने जो हिंट बताए थे, हाइड्रोजन हलीना की रफ से पर्याय, आपको याद कैसे करना है, हलीना की रफ से पर्याय असं आपण या ठिकाणी लक्षामध्ये ठेवू शकतो. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम हलीना की रफ से पर्याय. एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, स्ट्रोंटियम, बॅरियम, रेडियम, बेटा मागे कार स्कूटर बाप करायला, असं सुद्धा आपण या ठिकाणी काय करू शकतो, लक्षामध्ये ठेवू शकतो. आणि त्यांचे एलिमेंटचे ॲटॉमिक नंबर सुद्धा आता आपण काय केलेला आहे, बेरिलियम, मॅग्नेशियमचं 12, कॅल्शियम 20, कारण की आपण मॅजिक नंबर वरून काय केलं, फक्त कुणाचा ॲटॉमिक नंबर माहित होता आपल्याला, हायड्रोजनचा, आणि हायड्रोजनच्या नंतरचे जे एलिमेंट्स आहेत त्यांचे ॲटॉमिक नंबर आपण कशावरून काढलेले आहे, मॅजिक नंबरवरून. 2, 8, 18, 8, 18, 18 and 32 हे नंबर काय करायचा आहे, ॲडिशन करायचा आहे. अँड नेक्स्ट टू द ॲटॉमिक नंबर्स ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स इन द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट अँड सेकंड ग्रुप एलिमेंट. Next is the oxidation state in the first group element, what is the +1, because the last valence shell electron is the 1 electron loss, and the oxidation numbers of the first group element is the +1. And the second group element, the last valence electronic configuration, then the element like the beryllium atomic number is the 4, and the electronic configurations is the 1s2, 2s2, and the last valence shell S subshell is the maximum numbers of the electron present is the 2, and the loss of 2 electron, the oxidation state in the second group is the +2. And the examples like the first group element and second group element, जैसे कि यहाँ NaCl है, NaCl को हम जब ब्रेकिंग करते हैं तो Na पॉजिटिव
प्लस क्या होता है Cl नेगेटिव। यानी Na पर 1 पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि सोडियम ने क्या किया है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p6 और 3s1 क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s1। लास्ट सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यह सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 1, यानी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी सोडियम के पास कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन की है, यानी लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा 1 रहेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस कर सकता है वो, उसके आगे के इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लॉस करता, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 and 2p6 दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स है उसका जो नोबल गैस एलिमेंट्स है और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसका ऑक्टेट क्या रहता है कंप्लीट रहता है। यानी ऑक्टेट क्या है, तो लास्ट बैलेंस शेल में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट जब कंप्लीट है तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से खुद के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते। इसी वजह से लास्ट बैलेंस शेल में सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एंड द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन द ग्रुप 1 के एलिमेंट की कितना ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी 2। उसके बाद जैसे कि हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं MgCl2 and the dissociation of this MgCl2 compound Mg2 positive plus Cl twice Cl negative, यानी twice Cl negative। यानी अभी मैग्नीशियम पर कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि मैग्नीशियम ने क्या किया है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उस पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है Mg, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। यानी अभी मैग्नीशियम की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, तो 3s सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से मैग्नीशियम पर कितना चार्ज आएगा +2 चार्ज आएगा। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पॉइंट लिखे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड के जो फर्स्ट एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इन द पोजीशंस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, तो हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइटर एलिमेंट्स है। अभी हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, तो H2 मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, जैसे कि हम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड स्टेट में लिखते हैं तो हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं H2 लिखते हैं, हाइड्रोजन ओनली H नहीं लिखते, क्या लिखते हैं उसको H2 मॉलिक्यूल्स लिखते हैं। तो H2 मॉलिक्यूल क्यों लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है क्या है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, यानी अभी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखते हैं, तो यहाँ हम हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का 1 है, तो एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एटम में क्या प्रेजेंट रहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है। यानी हाइड्रोजन का ये एटम्स है, तो हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाद ये ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 इलेक्ट्रॉन्स है। न्यूक्लियस में क्या रहता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज, एंड दिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स शेयर विद another hydrogen atom and the sharing between the equal sharing pairs of the electron between the two atoms and to formation of the covalent bond and to formation of the H2 molecule, and this is the simple examples for the formation of the covalent bonding, and this is the H2 molecules is the diatomic molecules. This is the first point of the hydrogen. Next is the occurrence, in the occurrence यानी percentage, तो टोटल परसेंटेज इन द यूनिवर्स इन द हाइड्रोजन इज द 70% ऑफ द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, तो उसमें 10 मोस्ट अबंडेंस यानी परसेंटेज, अक्यूरेंस यानी परसेंटेज, तो हाइड्रोजन का जो
परसेंटेज है इन द टोटल यूनिवर्स में 10 मोस्ट अबंडेंट है और थर्ड मोस्ट अबंडेंट इन द गैस स्टेट में। तो गैस स्टेट में जैसे कि आप देखते हो कि कोई भी जो एलिमेंट कंपाउंड्स है, जैसे कि वाटर की हम एक बात करते हैं, तो वाटर में जैसे कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन क्या रहता है, कंबाइन रहते हैं, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल लिखते हैं। सपोजली आप समझ लो कि हाइड्रोजन अभी वाटर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, तो कंबाइन होकर क्या बना है कंपाउंड H2 मॉलिक्यूल। लेकिन जब हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन से ब्रेकिंग होगा तो क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या है, कंबस्टिबल गैस है, जलता है, और ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन कंबशन, ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ कंबशन, जलाने के लिए हेल्प करता है कौन, ऑक्सीजन एटम, and the combination hydrogen and oxygen to form the molecules is the H2 molecule, and H2 molecule to fuels को क्या करता है, उसको बुझाने की, आग को बुझाने की कोशिश करता है कि नहीं। तो ये इंटरेस्टिंग है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन के बाद क्या मिल रहा है आपको, वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन जब हम उसको ब्रेकिंग करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, सेपरेट होगी, और ऑक्सीजन क्या होगा, सेपरेट होगा। यानी ये इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ऑक्यूरेंस में आपको या सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि टोटल परसेंटेज इन द ऑक्सीजन इन द 17% हाइड्रोजन क्या है प्रेजेंट इन द टोटल यूनिवर्स में, और उसके बाद 10 मोस्ट अबंडेंट ये क्या है, हाइड्रोजन का परसेंटेज है। उसके बाद पोजीशन इन द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, आप देख रहे हो कि मैंने जैसे कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट यहाँ लिखे हैं, तो हाइड्रोजन का पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, यानी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने यहाँ लिखा है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ग्रुप की क्या है, ns1 है। यानी हाइड्रोजन के लास्ट वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड इसी वजह से जैसे कि हम वाटर के साथ हाइड्रोजन H+ आयन क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, तो उसके बाद क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोनियम आयन, जैसे कि H2 है, और इसके में हम जैसे कि हाइड्रोजन का H+ आयन और ऐड करते हैं तो इसमें फॉर्म होता है H3O पॉजिटिव एंड द हाइड्रोनियम आयन। यह टॉपिक जो है आपको अगले क्लास में जैसे कि 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस करना है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो आयन जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन बोलते हैं। अंडर चैप्टर नंबर 4 द एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस चैप्टर में द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन, देन नेम ऑफ द साइंटिस्ट रुदरफोर्ड एंड डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन्स, एंड प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर किया उसने, तो हाइड्रोजन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो जैसे कि H2 मॉलिक्यूल्स में H+ आयन आपने क्या किया, ऐड किया, तो फॉर्म होता है क्या, H3O पॉजिटिव, and the positions of the hydrogen in the periodic table, in the top position in the first group, and next in the elements is the lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium। तो अभी उसमें और भी डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे कि पोजीशन फर्स्ट ग्रुप में क्यों है, हाइड्रोजन एटम की जो पोजीशन है फर्स्ट ग्रुप में क्यों है, तो उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे, और 17 ग्रुप में। तो 17 ग्रुप में जैसे कि 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उसको कहते हैं हम हैलोजन एलिमेंट। तो हैलोजन एलिमेंट की भी वैलेंसी कितनी रहती है, 1 रहती है, और फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उसकी भी वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो ये हो गया वैलेंसी क्यों है। तो वैलेंस यानी क्या होता है, जैसे कि आपने सिंपल सी डेफिनेशन देखी होगी वैलेंसी की, द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट इज मेजर कैपेसिटी हम उसकी बोलते हैं एलिमेंट की। तो कैपेसिटी जो रहती है एलिमेंट की, लॉस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से और इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से उस पर जो चार्ज आता है उसको हम डिस्कशन किया है, जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर किस पर आता है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि NaCl कंपाउंड्स है, Na ने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी वैलेंसी भी है, जैसे कि उसके कंपाउंड के नियर अबाउट में कितने बॉन्ड्स को फॉर्मेशन कर रहा है उसी के वजह से उसकी वैलेंसी डिपेंड रहती है। जैसे कि NaCl है, तो NaCl में जो बॉन्ड है Na और Cl में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड। तो ये होगा आगे के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एक लास्ट टॉपिक। तो आइसोटोप्स यानी क्या होता है, सिंपल सा अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन बताता हूँ, और आगे के वीडियो में देखेंगे आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन। आइसोटोप्स यानी क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट
नंबर, यानी एटॉमिक नंबर क्या रहेगा उसका सेम रहेगा और डिफरेंट क्या रहेगा उसका मास नंबर। सपोज यहाँ हम एक ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन यानी एटॉमिक नंबर कितना है 1 है और एटॉमिक मास भी कितना रहेगा 1 रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स है 3 आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 12 और हाइड्रोजन 13। ठीक है, तो हाइड्रोजन 11 जो है उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, हाइड्रोजन 12 है जो ड्यूटेरियम है और हाइड्रोजन 13 जो है उसको बोलते हैं हम ट्रिटियम। एंड दिस इज द ट्रिटियम इज द मोर रेडियोएक्टिव एलिमेंट एंड द परसेंटेज इज द 2 × 10⁻⁻18। ये जो है उसका परसेंटेज रेयर ट्रेस रहता है, ट्रेस यानी क्या होता है कि निग्लिजिबल, जो नहीं के बराबर है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है एंड isotopes of the hydrogen 3 is the tritium, is the deuterium and the first is the proton। तो आगे की वीडियो में हम आइसोटोप देखेंगे।